that in capital budgeting there are various types of proposal, right? Like mutually exclusive, independent proposals are there. Then there is repair versus replace proposal. Then there is replacement proposal. We have already done with the single or independent proposal. We have already done with the mutually exclusive proposal, and now we are going to do the replacement proposal. Replacement proposal is one of the most difficult topic of capital budgeting because of its tedious calculation, and it has completely different sort of calculations which you need to consider about. Replacement proposal कौन से proposal होते हैं? Under these proposal we have to decide whether an old machinery is to be replaced with a new one or not. You have the existing set of machine, and then you have to decide that whether you want to replace it with new machine or not. Under this, you need to keep one thing in mind, that old machinery is in a proper working condition. Why we are dealing with this assumption is because कि समटाइम्स इट ऑल्सो हैपन कि ओल्ड मशीनरी को रिपेयर की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम ये डिसाइड करते हैं कि क्या हम ओल्ड मशीनरी की रिपेयर करवाएं या फिर रेदर देन इट्स रिपेयर हम न्यू मशीनरी परचेज कर ले. सो दैट इज ऑल्सो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ प्रपोजल टू बी डन. वो रिपेयर वर्सेस रिप्लेस वाले प्रपोजल होते हैं. हाउ टू आइडेंटिफाई कि ये रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन है? देयर नोवेयर इट शुड बी मेंशन कि ओल्ड मशीनरी को किसी भी तरीके की रिपेयर रिक्वायरमेंट है. अगर तो कहीं पर भी ये मेंशन्ड है कि ओल्ड मशीनरी को कहीं पर भी रिपेयर की रिक्वायरमेंट है, देन इट विल बिकम अ क्वेश्चन ऑफ रिपेयर वर्सेस रिप्लेस. रिप्लेसमेंट प्रपोजल के अंदर यू हैव द एग्जिस्टिंग मशीन, यू हैव द ओल्ड मशीन एंड इट इज इन अ प्रॉपर वर्किंग कंडीशन. नाउ how you have to deal with such replacement proposal? As you all know that NPV हम कैसे calculate करते हैं? PVCI minus PVCO. Here you have to do the incremental workings. ठीक है? Incremental workings मतलब होता है new minus old. Additional benefit आपको calculate करना है because you are doing new minus old. New machinery की workings में से old machinery की workings को deduct करोगे और हर चीज इंक्रीमेंटल निकालोगे. इंक्रीमेंटल पीवीसीओ, इंक्रीमेंटल पीवीसीआई, एंड डेफिनेटली फिर आपका डिसीजन रूल कैसा क्या होगा? अगर इंक्रीमेंटल एनपीवी जब आप निकालोगे, इफ इट इज पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली दैट वुड सिग्निफाई कि न्यू मशीनरी इज गिविंग यू मोर बेनिफिट एज कंपेयर टू द ओल्ड मशीनरी, then proposal will be accepted. If incremental NPV is negative, that would signify that old machinery is better than the new machinery. That means current proposal of replacement should be rejected and you should stick to your old machinery. And if the incremental NPV is 0, then that is a point of indifference, that is old machinery is at par with the new machinery. Now how to go about this incremental PVCI and incremental PVCO? Am I clearly audible to you people? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. See, incremental PVCO के अंदर वर्किंग्स कैसे करोगे? सबसे पहले एज आई एम टेलिंग यू दैट न्यू माइनस ओल्ड वाली वर्किंग्स करनी होती है. तो सबसे पहले आप क्या करोगे? इनिशियल कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन माइनस नेट सैल्वेज वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन. इट विल ऑलवेज बी गिवन टू यू कि अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मैं न्यू मशीनरी परचेज कर रही हूँ तो डेफिनेटली मैं ओल्ड को सेल करूंगी. ठीक है? तो आप न्यू वाली मशीनरी फॉर एग्जांपल 4 लाख रुपीस की है, पहले बोल लीजिए. माइनस क्या करोगे? नेट सैल्वेज वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीनरी. Now, why I am writing here the term net salvage value? It has also the implication. So always make a note of it that net salvage value is always after the tax adjustment. ठीक है? इसके अंदर आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि करंट बुक वैल्यू कितनी थी, आपने उसको कितने में सेल करा, तो आपको टैक्स इम्प्लीकेशन, अगर तो प्रॉफिट हुआ होगा तो आपको टैक्स लाइबिलिटी पे करनी पड़ेगी, अगर तो लॉस हुआ है तो उसकी वजह से आपकी टैक्स सेविंग होगी. अकॉर्डिंगली यू विल एडजस्ट द अमाउंट फर्स्ट एंड देन राइट डाउन द नेट सैल्वेज वैल्यू ऑफ द ओल्ड मशीनरी. सो अगेन हियर द थिंग्स आर नॉट इजी. एड क्या करोगे? एडिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल. एज वी ऑलरेडी नो, अगर आपने लास्ट क्लासेस अटेंड करी हैं
कि वर्किंग कैपिटल के केस में आप क्या करते हो कि वर्किंग कैपिटल की दो अजम्पशंस होती हैं. एक, पहले हम उसको इनफ्लो कंसिडर करते हैं, एंड सेकेंडली हम उसको एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द प्रपोजल आउटफ्लो कंसिडर करते हैं. द सेम थिंग वी आर डूइंग ओवर हियर, बट ऑन द इंक्रीमेंटल बेसिस. एडिशनल का मतलब क्या होगा? न्यू माइनस ओल्ड. ओल्ड की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी थी और न्यू की कितनी है? द डिफरेंस बिटवीन द टू विल ओनली बी टेकन ओवर हियर. Everything is to be taken on the basis of incremental basis. Then calculate the incremental PBCI. Again, it would be divided under the two heads. First, incremental CFAT. That means cash flow after tax should be there. That is the inflow. But you will again take it on the incremental basis, that is new minus old. सिमिलरली इंक्रीमेंटल टर्मिनल कैश इनफ्लो जो आपकी एंड में सैल्वेज वैल्यू गिवन होती है, again that has to be taken on the incremental basis, that is salvage value of new minus salvage value of old. But again, जैसे हमने यहाँ पर salvage value की टैक्स एडजस्टमेंट करी थी, यहाँ पर भी हम नई मशीनरी की और ओल्ड मशीनरी की नेट salvage वैल्यू लिखेंगे आफ्टर द टैक्स इम्प्लीकेशन. एड हम क्या करेंगे? रिकवरी ऑफ द एडिशनल वर्किंग कैपिटल. ये एडिशनल वर्किंग कैपिटल जो हमारा पहले पीवीसीओ, हम उसको आउटफ्लो लेते हैं, एंड में हम उनको इनफ्लो लेते हैं, एंड अगेन इट विल बी एडेड ओवर हियर. Then once you are done with it, उसके बाद तो this main working notes are difficult. Once you are with these figures, these three figures, incremental PVCO, incremental CFAT, incremental terminal cash inflows, then you have to just apply the PVF tables and get the answer. So I would recommend you to take the picture of this screen so that जब आप question करो तो आप you can always refer to this page कि आपको उसके लिए कैसे करना है. तो incremental PVCI and incremental PVCO कैसे calculate करना है. So this much portion should be with you for the quick reference. I hope you guys have taken the picture of the same. Let us move to the question now. Any doubt till here to anyone? Otherwise, we'll do the question, then only you will be able to understand the things properly. So let us do the question first. Okay. I guess this is our question. Yes. This is our question. See what is being mentioned over here. An existing machine has an existing company has a machine which has been in operation for 2 years. Its remaining estimated useful life is 10 year. Already एक old machine है जिसको मैं 2 years के लिए use कर चुकी हूँ. Remaining life उसकी कितनी है? 10 years. End में उसकी कोई भी salvage value नहीं है. करंट मार्केट वैल्यू मीनिंग दैट अगर मैं उसको आज की डेट पर सेल करूं तो वो कितने रुपीस में सेल होगी? 1 लाख रुपीस में. द मैनेजमेंट इज कंसिडरिंग टू परचेज एन इम्प्रूव्ड मॉडल ऑफ अ सिमिलर मशीन which gives increased output. So that means it is deciding to replace the old machinery with the new one. Existing machine की bifurcation आपको given है, new machinery की bifurcation आपको given है, tax rate given है 50%, method of depreciation है SLM. Again it is asking should the machine be replaced. Assume that the company's cost of capital यानी required rate of return is 15%. ये 15% का relevance क्या है कि इस rate पर आप उसको क्या करोगे? Discount करोगे. Okay, so let us start solving this question. Then we will understand the things. All right. Now again we have some additional question over here, but that we will see only once we are done with the above question. Okay, so let me open the solution sheet simultaneously. Okay, it is already open. We'll do the question here.
ऑल राइट, सो यू हैव द क्वेश्चन ऑन योर राइट साइड. लेट अस डू. सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी इंक्रीमेंटल वर्किंग्स. अगेन प्लीज मेक अ क्विक रेफरेंस ऑफ व्हाट वी हैव डन. कि आपको सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा. लेट अस से अगर ये वाली स्लाइड है तो आपने अगर उसकी पिक्चर क्लिक करी है तो आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, इंक्रीमेंटल पीवीसीओ. सो फर्स्ट यू नीड टू कैलकुलेट इंक्रीमेंटल पीवीसीओ. ठीक है, अभी हमने यहीं पर देखा था कि हमें क्या निकालना पड़ता है, इंक्रीमेंटल पीवीसीओ. एंड देन अंडर द इंक्रीमेंटल पीवीसीओ आप क्या करते हैं, इनिशियल कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन. इनिशियल कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन. इनिशियल कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन. राइट, अब आप देखिए कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन कितनी है, 4 लाख रुपीज. तो व्हाट आई विल राइट डाउन ओवर हियर इज 4 लाख रुपीज. देन आफ्टर दिस आपको क्या लेस करना पड़ता है, लेस नेट सैल्वेज वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन. ओके, जब आप इसको डिडक्ट करोगे ओके फाइन. नेट सैल्वेज वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन के केस में क्या है, यू नो कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इफ आई एम प्लानिंग टू परचेज अ न्यू मशीन, मेरी ओल्ड मशीनरी कितने की सेल होगी, व्हाट इज द सैल्वेज वैल्यू, व्हाट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द ओल्ड मशीन, 1 lakh. 1 लाख रुपीज. ठीक है, बट हेयर आई नीड टू कैलकुलेट द टैक्स इम्प्लीकेशन. ठीक है, सो सिंस इट इज 1 लाख, तो आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा दैट व्हाट इज द बुक वैल्यू, करंट बुक वैल्यू ऑफ दिस मशीन. ठीक है, उसके बाद आप कैलकुलेट कीजिए कि आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है. अकॉर्डिंगली यू विल कैलकुलेट द टैक्स लाइबिलिटी और टैक्स सेविंग. ठीक है, सो व्हाट यू विल डू इज कि बुक वैल्यू कैलकुलेट करिए. बुक वैल्यू कितनी है इस मशीनरी की, एज यू ऑलरेडी नो कि मेरी जो ओल्ड मशीनरी है, पहले तो उसका डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट कर लीजिए. कितने की मशीनरी है, 2,40,000 रुपीज की कॉस्ट है. कॉस्ट लेस सैल्वेज वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू इसकी है नहीं. ठीक है, सो डिवाइडेड बाय 12. तो डेप्रिसिएशन का रेट कितना आ गया पर ईयर, इसकी डेप्रिसिएशन है 20,000. 20,000 जो है वो 1 ईयर की डेप्रिसिएशन है एंड इट इज सेइंग दैट ऑलरेडी आप इसको 2 ईयर्स के लिए यूज कर चुके हो. सो इट वुड बी 20,000 इंटू 2, दैट इज 40,000 रुपीज की अभी तक की डेप्रिसिएशन लग चुकी होगी इसके ऊपर. सो इफ आई नीड टू कैलकुलेट द बुक वैल्यू, तो बुक वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करोगे, बुक वैल्यू विल बी, कितने की ओरिजिनल कॉस्ट है 2,40,000 लेस इसकी जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 2 ईयर्स की, वो माइनस कर देंगे. तो डेप्रिसिएशन अभी तक आपकी कितनी लगी है, 40,000 की. ठीक है, तो मशीनरी आपकी कितने की है, 2 लाख रुपीज की. ये इसकी बुक वैल्यू है. ठीक है, द सेम बुक वैल्यू आई एम राइटिंग ओवर हियर, 2 लाख रुपीज. अब 2 लाख की मशीनरी थी, मैंने सेल कितने में करी है, लेस सेलिंग प्राइस, जो भी उसकी सेल हुई है कितने में सेल करी है, 1 लाख रुपीज की. प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, Profit. लॉस. बुक 2 लाख रुपीज की मशीनरी 1 लाख रुपीज में सेल करी है तो लॉस हुआ है मुझे. ठीक है, Loss. लॉस हुआ है. लॉस कितने का हुआ है आपके पास, 1 लाख रुपीज का. नाउ यू हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड, जैसे कि हम अपने प्रीवियस क्वेश्चंस में करते आए हैं एंड यू नो द लॉजिक कि जब भी लॉस होता है उसकी वजह से हमारी क्या होती है, टैक्स सेविंग्स. अब लॉस की वजह से क्या होंगी हमारी टैक्स सेविंग्स, आप उसे कंसिडर करेंगे. ठीक है, तो टैक्स सेविंग्स कैसे होंगी, टैक्स रेट कितना है आपका 50%, तो टैक्स सेविंग्स कितनी होंगी एट द रेट ऑफ 50%, and that would be 50,000.
50,000 का आपकी कितनी होगी टैक्स सेविंग। अब जब आप नेट सैल्वेज वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन यहाँ पर लोगे, तो उस केस में यहाँ पर क्या लोगे, पहले तो जितने की सेल हुई है, कितने की सेल हुई थी, 1 लाख रुपीज की, टैक्स सेविंग्स अगर होंगी तो आप उस रेवेन्यू में ऐड कर दोगे। और अगर यही प्रॉफिट हुआ होता तो आपको टैक्स लाइबिलिटी देनी पड़ती, तो टैक्स लाइबिलिटी यहां से क्या कर देते, माइनस। बट अभी टैक्स सेविंग्स हुई है, तो जितने की आपने मशीनरी सेल करी है उसमें आप ये अपनी टैक्स सेविंग्स को ऐड कर दोगे। तो नेट सैल्वेज वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीनरी आप यहां पर कितनी लिखोगे, 1,50,000 की। एम आई क्लियर टू एवरीवन, ये वाला पोर्शन जो है? Yes, ma'am. Is there any doubt to anyone till here? Okay. So next हम क्या करेंगे, ऐड वो लास्ट करेंगे। वाला बता दो। Yes, ये नेट वैल्यू। नेट सैलरी 1,50,000। Okay, let me repeat this. Net salvage value of old machinery. सी, जो भी आपकी सैल्वेज वैल्यू होगी यहाँ पर ओल्ड मशीनरी की, उसमें आप दो चीजें लोगे। एक, जितने की तो वो सेल हो रही है। दूसरा, उसमें डिपेंड करेगा ऐड होगा या लेस होगा, टैक्स सेविंग या फिर टैक्स लाइबिलिटी। अगर तो टैक्स सेविंग्स होंगी तो वो ऐड हो जाएंगी, अगर तो टैक्स लाइबिलिटी होगी तो वो डिडक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसके लिए करोगे क्या कि बुक वैल्यू निकालो ऑन द डेट ऑफ द सेल। एंड जैसे हम नॉर्मल मशीनरी और डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग में हमेशा से सीखते आए हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में स्कूल लेवल में, कि आप क्या करते हो, बुक वैल्यू निकालिए, लेस निकालिए कि कितने में सेल हुई है, और ये निकालो कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। अगर तो प्रॉफिट हुआ होगा तो आपको उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा, अगर लॉस हुआ है तो उसकी वजह से आपकी टैक्स सेविंग्स हुई होंगी। तो यहां पर आपको हमेशा क्या करना है कि जितनी भी, लेट मी मेंशन ओवर हियर, यहां पर क्या करेंगे, एक तो आप सेल वैल्यू माइनस क्या करोगे, टैक्स लाइबिलिटी। टैक्स लाइबिलिटी कब होगी, इन केस ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल। ऐड क्या करोगे, टैक्स सेविंग्स इन केस ऑफ लॉस ऑन सेल। बस मैंने वही किया यहां पर। सिंस लॉस ऑन सेल था तो जिसकी वजह से मुझे क्या करना पड़ा, टैक्स मेरी सेव हो गया, ठीक है, एट द रेट ऑफ 50%, 50,000। तो मैंने क्या करा, सेल वैल्यू 1 लाख, इसमें अपनी टैक्स सेविंग्स को ऐड कर दिया, दैट इज 50,000। तो नेट सैल्वेज वैल्यू मैंने यहाँ पर कितनी लिया है, 1,50,000। इज दैट क्लियर टू यू नाउ? यस मैम। ओके, अब इसमें ऐड क्या करेंगे हम, एडिशनल वर्किंग कैपिटल। एडिशनल वर्किंग कैपिटल, ठीक है। एडिशनल वर्किंग कैपिटल में क्या करोगे, अब यहाँ पर देखिए, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है आपकी, ये देखिए यहाँ पर न्यू मशीन की कितनी है, 40,000। ओल्ड मशीनरी की कितनी है, 25,000। सो इट वुड बी 45,000 माइनस 25,000, दैट इज 15,000। आपको इंक्रीमेंटल लेना है, ये बात ध्यान रखिएगा। सो लेट मी मेंशन ओवर हियर, मैंने क्या किया है, 40,000 माइनस 25,000, दैट इज 15,000। ये मेरा क्या निकल आया, इंक्रीमेंटल पीवीसीओ। जो कैसे निकालोगे, ये नेक्स्ट आपका ये क्या आएगा, इट वुड बी इंक्रीमेंटल पीवीसीओ, जो कि अगर आप क्या करोगे, 4 लाख माइनस 1,50,000 प्लस 15,000, इट वुड बी 2,65,000। तो एक तो हमारी ये वैल्यू निकल गई विच आई विल बी रिक्वायरिंग। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे इंक्रीमेंटल सीएफएटी, ठीक है। सो नेक्स्ट आपका वर्किंग नोट 2 है। वर्किंग नोट वो 1 था, और ये वर्किंग नोट आपका हम 2 लिख लेते हैं, और यहाँ पर हम लिख देते हैं इसके ब्रैकेट में, दिस इज वर्किंग नोट 1।
working note 1, right? Okay. So in case of working note number 2, what you have to do is the calculation of incremental CFAT. Okay, so what we will do is कि अब CFAT again इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है and you need to calculate it. ठीक है? So सबसे पहले आप क्या लोगे? Incremental revenue माइनस इंक्रीमेंटल कॉस्ट. अब इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कैसे लोगे? यहाँ पर देखो, वो क्या कह रहा है कि पूरे साल के अंदर मशीन के ऑपरेटिंग आवर कितने हैं? 2000, और एक आवर में वो कितने आउटपुट निकाल कर देता है? 15, और एक यूनिट का जो है सेलिंग प्राइस कितना है? 10. ठीक है, सो आप इन सब चीजों को मल्टीप्लाई करोगे. सो व्हाट यू विल मेंशन ओवर हियर इज 2000 इनटू 15 यूनिट, ठीक है, इनटू 10 रुपीज. ये तो हो गया न्यू मशीन का. माइनस ओल्ड का कैसे करोगे? सेम 2000 आर रन करती है पूरे ईयर में, ठीक है, इनटू 30 यूनिट इनटू 10. सेलिंग प्राइस 10 है. मैम 30 यूनिट वाला तो न्यू मशीनरी का है ना. अच्छा सॉरी, मैं ये इट वुड बी वाइस वर्सा. न्यू मशीन का लोगे यहाँ पर 30 और यहाँ ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड लोगे तो ये ऐसे करेंगे. ठीक है, सो with the help of this you will be able to calculate the incremental revenue. इस पार्ट पे किसी को कोई डाउट है? आई अगेन रिपीट, एक मशीनरी जो है पूरे ईयर में कितने आवर्स रन करती है? 2000. 1 आवर में कितना आउटपुट देती है? 30. तो एनुअल आउटपुट निकल जाएगा. पर यूनिट की सेलिंग प्राइस कितनी है? 10. अकॉर्डिंगली यू विल डू इट फॉर द ओल्ड मशीनरी एंड यू विल कैलकुलेट द इंक्रीमेंटल रेवेन्यू विच इज कमिंग आउट टू बी 3 लाख. ओके, नेक्स्ट लेस. इसमें क्या करोगे? नेक्स्ट क्या गिवन है आपको? मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, कंज्यूमेबल, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, एवरीथिंग यू विल कंसिडर, बट ऑन द इंक्रीमेंटल बेसिस. इंक्रीमेंटल मटेरियल कॉस्ट, हाँ जी, इंक्रीमेंटल मटेरियल कॉस्ट के केस में क्या है? अगेन न्यू माइनस ओल्ड करोगे. 2000 इंटू 30 इंटू 2, ठीक है. 2000 इंटू 30 से आपका आता है आउटपुट, और पर यूनिट का जो मटेरियल कॉस्ट वो कितना है? 2 रुपीज. सो इट वुड बी 2000 इंटू 30 इंटू 2, ये हो गया. माइनस क्या करोगे इसमें से? 2000 इंटू 15 इंटू आपकी मटेरियल कॉस्ट सेम ही है, ठीक है, इट वुड बी 2. अगेन इसको कैलकुलेट करोगे तो वो आपका कितना आएगा? इट वुड बी 60,000 रुपीज. नेक्स्ट, नेक्स्ट में इंक्रीमेंटल सिमिलरली लेबर कॉस्ट ले लेते हैं. ओके, तो लेबर कॉस्ट में अगेन वी विल डू दी सेम थिंग, बट यहाँ पर ध्यान रखिएगा लेबर कॉस्ट में क्या लिखा हुआ है? लेबर कॉस्ट पर आवर. तो कहीं गलती से 2000 इंटू 30 फिर मत कर देना, वो आवर्स ही लोगे. एनुअल ऑपरेटिंग आवर्स इंटू पर आवर की लेबर की कॉस्ट कितनी है? सो 2000 इंटू 40, ठीक है. सो 2000 इंटू 40 माइनस 2000 इंटू 20 है लेबर कॉस्ट, ठीक है. तो आप देखोगे तो ये कितना आएगा? डायरेक्ट डिफरेंस 40,000. ले सकते हैं ना. आपको वर्किंग्स दिखानी पड़ती हैं, तो आप यहाँ पे ब्रेकअप दिखा दीजिएगा. देन लेस कंज्यूमेबल स्टोर्स, अगेन वो भी इंक्रीमेंटल बेसिस पर.
ठीक है, और कंज्यूमेबल स्टोर्स जो हैं न्यू के कितने हैं 5000, ओल्ड के कितने हैं 2000, तो 5000 माइनस 2000, 5000 माइनस 2000। अब यहाँ पर इतनी, हाँ इट डिपेंड्स, अगर आपको लगता है इफ टाइम इज लेस आप डायरेक्ट लिखना चाहते हो तो यू कैन स्किप द ब्रेकअप, तो आई डोंट फील लाइक कि आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। ओके फाइन, लेस कंज्यूमेबल स्टोर्स। ऐसे ही अब लास्ट आपका क्या रह गया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। अच्छा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस में ध्यान दीजिए कि न्यू माइनस ओल्ड में उल्टा है, कि न्यू की कम है, ओल्ड की जो है वो ज्यादा थी, तो ये तो आपका एक तरह से बेनिफिट हो गया। ठीक है, तो बेनिफिट को माइनस नहीं करोगे, बेनिफिट को ऐड करोगे क्योंकि सेविंग्स है आपकी। ठीक है, सो ऐड करोगे सेविंग्स इन रिपेयर एंड मेंटेनेंस। So it would be difference that is 3000, बिकॉज ओल्ड मशीनरी में ज्यादा रिपेयर्स की रिक्वायरमेंट थी, न्यू मशीन में इतनी नहीं है, तो ये ऐड करोगे 3000। ओके, सो वंस यू विल कैलकुलेट ऑल दीज थिंग्स यू विल गेट इंक्रीमेंटल, अभी भी नो थिंग्स आर नॉट डन, अभी भी यू विल ओनली गेट इंक्रीमेंटल CFBT, इंक्रीमेंटल CFBT। In case of incremental CFBT, if you will calculate, then it will be 2 lakh if you will calculate, right? And then less क्या करोगे, as you know इसके बाद के steps क्या होते हैं, once you calculate the CFBT तो आप इसमें से क्या डिडक्ट करते हो, डेप्रिसिएशन डिडक्ट करोगे, टैक्स डिडक्ट करोगे, फिर डेप्रिसिएशन को एड बैक करोगे, या फिर आप शॉर्टकट मेथड अप्लाई कर सकते हो, इट इज अप टू यू। तो इंक्रीमेंटल CFBT में से लेस क्या करोगे, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। ठीक है, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन के केस में क्या है, व्हाट यू विल डू इज कि आपको पता है कि न्यू ओल्ड मशीनरी की तो हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करी थी, दैट वाज 20,000, और न्यू मशीनरी के डेप्रिसिएशन कितनी होगी, 4 लाख डिवाइडेड बाय 10, दैट इज 40,000। सो इट वुड बी 40,000 माइनस 20,000, दैट इज 20,000। ओके, सो व्हेन वंस यू विल डू दिस, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, माइनस कीजिए तो ये आपका आ जाएगा इंक्रीमेंटल PBT 1,80,000, 1,80,000 would be your incremental PBT, profit before tax। ठीक है, एंड वंस यू आर डन विद दिस, उसके बाद आप इसमें से लेस कीजिए टैक्स, इंक्रीमेंटल टैक्स रेट कितना है आपका, एट द रेट ऑफ 50%। ठीक है, सो 1,80,000 का 50% दैट इज 90,000 डिडक्ट कीजिए। आप शॉर्टकट मेथड भी अप्लाई कर सकते हो जो हमने प्रीवियस क्लासेस में सीखा है, दैट अब ये आपका आ जाएगा इंक्रीमेंटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इंक्रीमेंटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दैट वुड बी 90,000, एंड इसमें अब आप क्या करोगे, एड बैक करोगे डेप्रिसिएशन, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन विल बी एडेड बैक, बिकॉज हमने इस पूरे प्रोसेस में किया क्या, हमने इसकी टैक्स सेविंग्स ऑन डेप्रिसिएशन को इनकॉर्पोरेट कर लिया। नाउ फाइनली यू विल गेट इंक्रीमेंटल CFAT. Finally, you will get incremental CFAT over here, and that would be, जब 90,000 में 20,000 ऐड करोगे, that would be 1,10,000। So एक तो ये फिगर है जो मुझे चाहिए। ठीक है,
अब लास्ट मेरा क्या रहता है, टू कैलकुलेट दी incremental terminal cash inflows, that would be my working note number 3. Working note number 3, that is incremental, it would be incremental calculation of terminal cash inflows. अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या था, salvage value of न्यू मशीन. ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा इजी पार्ट आपके लिए इसलिए हो गया क्योंकि इन दोनों की सैल्वेज वैल्यू है ही नहीं. अगर होती तो फिर आपको फिर से टैक्स इम्प्लीकेशंस कैलकुलेट करनी पड़ती. सिंस यहाँ पर है नहीं तो मैं यहाँ पर नील लिख देती हूँ. लेस हम क्या करेंगे, सैल्वेज वैल्यू instead of new I will write down old over here. यहाँ पर भी नहीं है, so we are saved of all our previous calculations. And then add हम क्या करेंगे इसमें, recovery of additional working capital. वो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे. ठीक है, वो कितना था आपका, यहाँ पर देखिए 15,000. अब वही चीज आप यहाँ पर लोगे, दैट इज 15,000. बस, तो आपकी फाइनल जो अमाउंट होगी दैट वुड बी 15,000 विच यू विल कंसिडर. ठीक है, सो ये आपका अमाउंट हो गया. वंस अब मेरे पास ये तीनों फिगर्स हैं. ठीक है, और अब इन तीनों फिगर्स को आप इनकॉर्पोरेट करके, नाउ थिंग्स आर इजी. सबसे टीडियस पार्ट यही था, उसके बाद तो आप अब नॉर्मली अपना क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हो. नाउ लेट मी कंप्लीट दिस क्वेश्चन, हाउ यू विल सॉल्व इट. स्टेटमेंट showing evaluation of replacement proposal, ये रे कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है आपकी 15%, सो आई एम राइटिंग डाउन हेयर 15%. देन अमाउंट एंड देन प्रेजेंट वैल्यू. ओके, now I have to just use the above figures which I have calculated. ओके, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लेंगे, इंक्रीमेंटल PVCO. ठीक है, and that for this I will be using my working note number 1. ठीक है, अब इंक्रीमेंटल पीवीसीओ कब होगा, टाइम 0, आज की डेट पर हो रहा है वो. ठीक है, आज की डेट पर मैं नई मशीनरी परचेज कर रही हूँ, ओल्ड को सेल कर रही हूँ, और इंक्रीमेंटल बेसिस पे मेरी वर्किंग कितनी थी. आपको पता टाइम 0 में पीवीएफ वैल्यू 1 होती है. ठीक है, और जो है इंक्रीमेंटल पीवीसीओ कितने आपका 2,65,000, तो वो मैंने यहाँ पर ले लिया. इट वुड बी 2,65,000, 2,65,000 एंड सेम 2,65,000. ठीक है,
उसके बाद वंस आई एम डन विद दिस, उसके बाद नेक्स्ट आप लोगे इंक्रीमेंटल पीवीसीओ। इंक्रीमेंटल पीवीसीओ में आप क्या लोगे, इंक्रीमेंटल सीएफएटी। ठीक है, इंक्रीमेंटल सीएफएटी अगेन आप कहां से लोगे, वर्किंग नोट नंबर 2 से। वर्किंग नोट नंबर 2 से। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर देखिए वर्किंग नोट नंबर 2 में मैंने इंक्रीमेंटल सीएफएटी कैलकुलेट करा है 1,10,000। ठीक है, बट आप ये बात ध्यान दीजिए कि अब यहाँ पर न्यू मशीनरी के केस में लाइफ कितनी थी, ये 1 साल का है जो मैंने कैलकुलेट करा पर ईयर, एंड यही सेम अमाउंट जो है वुड बी देयर फॉर 10 years, तो मैं एन्युटी यूज करूंगी, राइट। सो इट वुड बी 1 to 10 year. Then I will use the annuity table over here, and उसकी हम वैल्यू अभी देख लेंगे। annuity table से 1,10,000 and then incremental terminal value, that is working note number 3। ठीक है, और वो कब होगा, एट द एंड ऑफ द 10th year, and the amount is I have already calculated, that is 15,000. Now I have to do nothing but to look at the PVAF table at the rate of 15% 10-year वाला, और PVF table at the rate of 15% पे 10th year वाला. So let me open my PVF table. I'll jot down the values and then I'll be done. Okay, so I have this CVF table. I need to have PVAF table first. Okay, PVF table आ गया तो वही देख लेते हैं। PVF table जो है 15% पे 10th year की वैल्यू पे 0.247, 0.247, राइट। और फिर हम PVAF टेबल देख लेते हैं 15% पे, ठीक है, और 10th ईयर पे इट इज 5.019, सो इट वुड बी 5.019। वंस यू आर डन विद दिस, ठीक है, आप क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, दिस इनटू दिस, you will get the present value, and then equal to this into this, and you will get the present value. And then once you are done with this, आप कैलकुलेट कीजिए दिस बी पार्ट इन दोनों को क्लब करके, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ, या फिर इज इक्वल टू जो है इन दोनों का सम कर रहे हैं हम, 5,52,090 and this 3,705, ठीक है, you will get this value I guess, ठीक है। once you are done with this, अब आप इंक्रीमेंटल एनपीवी निकाल लीजिए, इंक्रीमेंटल एनपीवी that is B minus A, B minus A, A आपका ये है, B माइनस A का मतलब क्या है, इट मीन्स कि आप क्या कर रहे हो, PVCI माइनस PVCO इंक्रीमेंटल बेसिस वाला, क्योंकि ये आपका क्या है, इंक्रीमेंटल
PVCI. This is your PVCI. What you have to do is this minus 5,55,795 minus 2,65,000, ठीक है. सो अमाउंट आपका कितना आ जाएगा 2,90,795. और ये मैंने कैसे कैलकुलेट करा है, लेट मी मेंशन ओवर हियर. मैंने क्या किया है 555,795 माइनस 2,65,000 से ये अमाउंट आया, ठीक है, दिस वन. Since you can see that my incremental NPV is positive, I should replace my new machine. I should replace old machinery with the new one. So final आपका क्या है decision? कि since incremental NPV is positive, go for replacement.